Welcome to all my dear students in our favorite subjects that name is physics. So let's move towards our first chapter, that is units and measurements. Just recall our previous some videos. Why? Because today's our topics is most related with the previous videos. We know one things from our chapter, it is nothing but the fundamental. What is the fundamental quantities? What is the fundamental quantities? The fundamental quantities which do not depend upon any other quantity, the physical quantity. What I say? The physical quantity which do not depend upon any other quantity for their measurements, that is called as the fundamental quantities. And the units which is used to measure the fundamental quantity, that is called as the fundamental units. So how many fundamentals units you have studied already? It is nothing but the 7. It is nothing but the 7. Which one? The simple trick of that, it is nothing but the MLT square ELA. ये प्रॉपर याद करके रखने का बच्चों, ये भूलने का नहीं है. That is nothing but the MLT square ELA. What is the M? It is nothing but the mass. What is the L? It is the length. T square, that means how much time T was there? These are the twice time, 2 times T was there. One for time and another for temperatures. What is the E? It is the electric current. What is the L? It is the luminous intensity. And last one, that is the amount of substance. We have seen already all these fundamental quantities. But in our previous lectures, we are discussing about the dimension and dimensional analysis. What we see in previous lectures, that is dimensions. In this case, the dimensions, it is nothing but the express the derived quantity in terms of the fundamentals. Is that correct? Is that correct? Some of the symbols which is used from the fundamental units as well as the quantity with symbols. The first one symbol is used M for mass, another one L for length, third one that is T for time. But after these one, we are moving with their proper symbol of units as well as one was left there, that is electric current, which is simply denoted by I. But that is temperature, it is Kelvin. It is Kelvin. Luminous intensity, it is nothing but the C. Amount of a substance, it is nothing but the mole. Such kinds of the symbols are used to derive the dimension. To derive the dimensions. In that previous lectures, we already studied how to determine the dimensions. From that, just I was right here one examples. That is nothing but the simple examples. It is nothing but the velocity. It is nothing but the velocity. What is the unit, or simply what is that? Not we are going with the units. We are going with the formula. What is the velocity? Velocity, it is nothing but the displacement upon time. What is this? Displacement upon time. And displacement, it is nothing but the length. So that's why I am right here. It is the L. And what is this? This time, it is the denoted by the symbol T. But my dear students, one things we remember here, whenever we are going to write any dimensions, the square bracket is necessary. It is the rule. It is the most important rules to write the dimensions in a square bracket. So using the law of indices, it can be write as L into T raised to minus 1, and it is simply rise at L1. It was there, that means there is the 1, L raised to 1, T raised to minus 1.
with the help of such kinds of the derived method for the write the dimension in such form, we already done it near about 10 examples in the previous video. So guys, today we are moving to another point. It is the most important. It is nothing but the uses of dimensional analysis. It is nothing but the uses of dimensional analysis. What I say? Uses of dimensional analysis. So the dimensions which is used for a different purposes. आज कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी हो रही है क्या? चलो परेशान हो जाओगे, आता हूं मैं हिंदी पे. चलो आज क्या देखना है स्टूडेंट्स हमको? आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. जो भी डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों ने कल देखा था उसका यूज किस तरह से होता है वो हम लोगों को यहां पे देखना है. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ बुक, हम लोग बुक के प्रॉपर से ही देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? इट इज नथिंग बट दी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. देखो फर्स्ट पॉइंट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस. देखो बच्चों ये जो यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है इसके, बहुत सारे. बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स ये क्या है? ये इक्वेशंस है. अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स हम लोग देखेंगे यहां पे कितने दिए हैं हमें? सिर्फ 3 ही दिए हैं. यहां पे कितने दिए हैं हमें? सिर्फ 3 दिए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं. तो चलो पहले देखते हैं. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस. फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये किसके हेल्प से हम लोग देख सकते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से देख सकते हैं. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दीज आर पॉसिबल विद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है या जो भी इक्वेशंस है वो इक्वेशंस का डायमेंशंस के रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं? जो भी इक्वेशन मिला है हमें वो करेक्ट है क्या नहीं देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या है कि मानो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन ले लो. अब समझ लो बच्चों आपने कुछ इक्वेशंस देखे होंगे इन द स्टैंडर्ड 9 और 10th में. कौन से थे? सम ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने देखे थे जरूर देखे होंगे. इसके अलावा लॉज ऑफ मोशंस या मोशंस के इक्वेशंस आप लोग पढ़े ही नहीं है. तो कौन कौन से देखे थे? सबसे पहले देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा देखा था v स्क्वायर. देखा था या नहीं देखा था? या खाली बोल रहे हो नहीं सर देखा था? ऐसा नहीं है, ये है आपको गया है. दूसरा क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस बराबर. थर्ड वन क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a इंटू एस का, सॉरी a इंटू यस नहीं है, a इंटू टी का स्क्वायर है, a इंटू टी का स्क्वायर है. ये काइनेमेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने देखे थे. अब ये काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या है? इट इज नथिंग बट दी वन काइंड ऑफ दी फिजिकल इक्वेशंस. दैट्स राइट, यस इट इज राइट. अब जब आप क्या करोगे, हर एक फिजिकल इसके अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का जब आप डायमेंशंस निकालोगे, हर एक क्वांटिटी का, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे या इसका निकालोगे, हर एक क्वांटिटी का आप जब डायमेंशंस निकालोगे, अगर इस वाली साइड दैट मीन्स द LHS एज वेल एज RHS बोथ आर द सेम,
अगर इसका LHS और RHS अगर ये सेम होगा तो उसको कहा जाता है आपका इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है। आपका इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। देखो बच्चों, यहां पे एक बात ध्यान में रखना है, ये डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है, ये डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है और जो हमारा सिंपल करेक्ट है वो करेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट यानी क्या? सिर्फ और सिर्फ उसकी अगर डायमेंशंस आप लेते हो तो ही वो करेक्ट होगा। बट जब आप इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल्स या नंबर्स कुछ ऐड कर देते हो तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। डायमेंशनली करेक्ट होगा क्या? ये नहीं होगा। डायमेंशनली करेक्ट क्या है? सिर्फ इसकी और ये तीनों चीजों की क्या करेंगे हम लोग? डायमेंशंस लेंगे और इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशंस ऑफ AT, ये तीनों के तीनों डायमेंशंस अगर सेम है तो वो क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। ये वाला एग्जांपल्स, हाँ, उसको क्या कहते हैं? उसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, बराबर है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो देखो बच्चों, इक्वेशन क्या है हमारा? इट इज नथिंग बट दी V इज इक्वल टू U प्लस AT। सबसे पहले क्या कर लो, इसको समझ लो, ये इक्वेशन क्या है। देखो, इसके अंदर की हर एक टर्म समझ लो। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर के टर्म्स के रिलेटेड क्या निकालना है? हमें उसका डायमेंशन निकालना है। V क्या होता है? इट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी। बट ये वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल वाली वेलोसिटी है। ये क्या है? U, ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस A क्या है? एक्सेलरेशन है, और T क्या है? टाइम है। अगर बच्चों ये इक्वेशन आप लोग प्रॉपरली और गौर से देखोगे तो ये इट इज नथिंग बट दी एक्सेलरेशन। ये क्या है? सिंपल एक्सेलरेशन है। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या आता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? आपका जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से आपको क्या निकालना होगा? इनिशियल वेलोसिटी निकालना होगा। अब ये चेंज इन कैसा होता है? मानो आपके पास 100 रुपए थे पहले, बराबर है, और कुछ देर बाद आपने क्या कर लिया, उसके अंदर 200 रुपीज ऐड कर लिए। कितने ऐड कर लिए? 200 रुपीज आपने ऐड कर लिए। तो जो चेंज हो गया, दोनों में जो चेंज आ गया, वो चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो टाइम है, ये टाइम इधर लेके जाओ, क्या होगा? ये AT इज इक्वल टू V माइनस U, और इट इज सिंपली नथिंग बट दी V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसा है बच्चों? बोथ आर दी सेम। चलो, अब ये नहीं देखना है हमें ये इक्वेशन प्रूफ नहीं करना था, बस एज फॉर आवर नॉलेज कि ये इक्वेशन क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी था। नहीं तो बोल लगे सर सिर्फ इक्वेशन बताया, लेकिन कैसे आया, कहाँ से आया, आपने बताया नहीं। चलो, ये क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब ये वेलोसिटी है, क्या है? ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, मगर उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। फाइनल वेलोसिटी रहो या इनिशियल वेलोसिटी रहो, रहेगी तो क्या वो वेलोसिटी ही रहेगी। तो इसका डायमेंशंस लिखो, क्या होगा बच्चों इसका डायमेंशन? इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था अभी जस्ट 1 मिनट पहले, L(t⁻⁻1) इज इक्वल टू, ये भी क्या है? वेलोसिटी है, तो ये इसका क्या होगा? L(1t⁻⁻1) प्लस, अब ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है? एक्सेलरेशन। What is the definition for acceleration? We just see here, change in velocity upon time, change in velocity upon time। बोले तो क्या होगा? वेलोसिटी भी आएगा यहाँ पे, क्या होगा? L(1t⁻⁻1), सॉरी
ये, और चेंज इन वेलोसिटी बराबर है अपॉन टाइम था यहाँ पे। चलो इसको और अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, चलो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको और अच्छे तरह से याद करेंगे। ओके, अब देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट अभी आया है तो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, याद हो जाएगा। ये क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या है हमारा, इट इज नथिंग बट दी L1t⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, फिर क्या आ गया, ये टाइम आ गया, ये हो गया 1, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या होगा ये होगा L1t⁻, ये -1 और ये वाला -1, तो ये क्या होगा, ये सिंपल होगा L1t⁻²। अब यहाँ पे लिख दो एक्सेलरेशन, ये आ गया ना आपका एक्सेलरेशन, बराबर है, यहाँ पे लिख दो एक्सेलरेशन L1t⁻², और ये वाला एक t, ये हो गया t⁻1, ये हो गया t⁻1। अब बच्चों इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो देखो ये हो गया, अब LHS तो पहले ही हमने निकाल लिया, L1t⁻1 इज इक्वल टू L1t⁻1 प्लस, अब देखो बच्चों ये L1 जैसे कि वैसा, ये क्या है -2 और ये क्या है +1, लॉ ऑफ इंडाइसिस देखो क्या होगा, ये t⁻⁻1 यानी -1 आ गया, यानी क्या हो गया, -1 आ गया। अब देखो LHS में ये वाला L1t⁻1, ये वाला देखो L1t⁻1, और ये वाला देखो L1t⁻1, ये जो तीनों भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये तीनों भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, सेम है, दैट इज नथिंग बट दी LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स as the dimensions are the same and this equation is dimensionally correct, ये क्या हो गया हमारा, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो हमारा पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यहां पे हो गया पॉसिबल, हो गया। क्या किया हमने, करेक्टनेस देखा, किसका, फिजिकल इक्वेशन का। कौन सा फिजिकल इक्वेशन था, v = u + at, ये डायमेंशनली करेक्ट है, यस सर इट इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो अब मुझे बताओ कि ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, बराबर ही आएगा, बराबर ही आएगा। अब क्या करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड पॉइंट। अब ये था फर्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, चलो ये मिटा देता हूं मैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। अब सेकंड वाला क्या है, बताओ बच्चों, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बताता है हमें टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो सेकंड वन, टू establish the relationship between related physical quantity। बहुत ही मस्त है ये आपको क्या है, ये आपको 12th में जाने के लिए बहुत हेल्प करेगा, यानी आपको थोड़ा सा फील आएगा कि सर हम 12th में पहुंच गए। वाई, बिकॉज जो भी हम इसके अंदर प्रूफ निकालेंगे, वो जो प्रूफ है वो प्रूफ हमारे 12th में विथ प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली है। चलो अब देखते हैं बच्चों, ये क्या बोल रहा है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये क्या करता है, जो भी रिलेशन है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें हेल्प करता है, यूज करता है, हम उसका यूज करते हैं। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि मानो ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ऐसा वाला पेंडुलम, ये क्या है, पेंडुलम है, पेंडुलम। अब ये पेंडुलम क्या होता है, सिंपल, आप लोगों ने बहुत बार वॉच देखी होगी, वॉच, वॉल वॉच जो दीवार के ऊपर होती है ना, लोलक वाली बोलते हैं उसको, और जिसका ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा घूमता है, ऐसा पर्टिकुलर ऑसिलेट होता है। ये जो वॉच हमें 1 या 2 बजने के बाद जो बेल बजाती है ना, जोर जोर से आवाज़ करती है, 1 बज गया, आवाज़ नहीं करती, वो सिर्फ टोल देती है,
जैसे स्कूल का टोल होता है ना वैसा। अब ये सेम है वैसा। हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया। अब ये जो सिंपल पेंडुलम हमने कंसीडर किया उसका जो टाइम पीरियड है, मानो कि वो टाइम पीरियड टी है। टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। और ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट हो रहा है मीन्स ये एक जगह से यहां तक गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां से वहां तक ही गया और फिर वापस आ गया। अब ऑब्जर्व कर लो, जब मैं जो मैंने आपको वॉच का एग्जांपल दिया ना वो ऑब्जर्व कर लो, बहुत ईजी होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है टी, ये किसका है, जो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसका है। अब ये सिंपल पेंडुलम किसके किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये डिपेंड रहता है लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, जो धागा होता है या वायर होता है उस वायर के लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। माना कि आपने एक छोटा ले लिया धागा, छोटा एक 10-15 सेंटीमीटर का ले लिया और यहाँ पे एक वेट वाला पेंडुलम लगा दिया और उसको रोटेट कर रहे हो आप लोग। उसको क्या कर रहे हो आप लोग, रोटेट कर रहे हो, ऑसिलेट कर रहे हो, रोटेट यानी ऑसिलेट कर रहे हो। और एक बड़ा सा धागा लिया, नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक धागा ले लिया आपने, और वो धागा आप क्या कर रहे हो, उसको ऑसिलेट कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो टाइम है वो टाइम चेंज होगा। दैट मीन्स टाइम इज डिपेंड अपॉन द लेंथ एज वेल एज। अब मुझे बताओ, आपने उसको धागा बंध लिया, यहाँ पे वो पेंडुलम है, वो पेंडुलम ऐसा ऊपर ऑसिलेट करेगा क्या, नहीं करेगा। व्हाई, बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्ट ऑन दैट, बिकॉज the acceleration due to gravity which is act on that pendulum। तो क्या है, ये t जो है, t एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ को, या नहीं, और किसको होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा g को। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोगों को अभी तक तो पता नहीं है। तो समझो ये L⁻A है, अब ये A है और ये G⁻ हमने B कंसीडर कर लिया। अगर ये A पॉजिटिव आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये निगेटिव आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर B पॉजिटिव आया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये निगेटिव आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो दो टर्म मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आप लोगों को गया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर समझो t बढ़ा तो लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ा तो t बढ़ा, बराबर। अगर लेंथ बढ़ा दिए तो आपने उसका टाइम बढ़ेगा, बराबर है। सिमिलरली अब कोई भी देखो, समझो आप इसको ये एग्जांपल ले लो, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b, इससे क्या होता है, अगर a की वैल्यू चेंज हो गई, a की वैल्यू अगर बढ़ गई तो b की भी बढ़ जाएगी, अगर b की बढ़ जाए तो ऑब्वियसली a की भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माना कि a की वैल्यू बढ़ी है तो b की घटी है, अगर b की घटी है, b की बढ़ी है तो ऑब्वियसली a की क्या होगी, घटी होगी। ये होता है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अब देखो बच्चों, अब देखो एक सिंपल रूल हमें पता है, अगर ये इसको प्रोपोर्शनल है, सिमिलरली ये इसको भी प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं क्या, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻A G⁻B। ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं, जरूर मैं इसको लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। बच्चों ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी हम कभी ए वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं तो वहां पे हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वहां पे क्या लेना पड़ेगा, हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे जो कि हमने यहाँ पे k लिया है, और ये हो गया L⁻A G⁻B, L⁻A G⁻B। और ये k क्या आ गया, ये क्या आ गया, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, बराबर है। अब देखो ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, हमारी लेंथ है, ये क्या है, हमारा टाइम है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम लोगों ने अभी देखा था, क्या था डायमेंशन उसका, दैट इज नथिंग बट द L⁻1 T⁻-2। अब क्या करते हैं,
इसको हम क्या करते हैं, उस फॉर्म में लिखते हैं। कौन से वाले फॉर्म में? अपने डायमेंशनल वाले फॉर्म में, क्योंकि हमको क्या करना है, डायमेंशन का यूज करके हमें देखना है कि जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, बराबर है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, वो इसके रिलेशन में आता है या नहीं आता है। तो चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे, टी है मतलब t⁻1 एक बार ही आएगा, बराबर है, ये के नॉर्मल कांस्टेंट है, ये क्या होगा, l⁻1 होगा, l⁻1, और ये आएगा a, बराबर है, ये क्या होगा, t⁻2 था, और ये हमारा b था। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करो, लॉ ऑफ इंडाइसेस x⁻a, और अगर b होगा तो ये और इसका क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये आएगा x⁻ab आएगा, x⁻ab आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, एक होता है बच्चों, क्या होता है, एक होता है। ये हो गया t⁻1 इज इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट k, बराबर है, ये आ गया आपका l⁻a, हाँ, ये प्लस आएगा यहाँ पे, चलो ये प्लस आएगा, वहाँ पे देख लो, हाँ। अब देखो l⁻a, ये आ गया l⁻b, t⁻2b हो गया, ये क्या हो गया, -2b हो गया, ठीक है। अब सिंपल बात है, देखो मैं लॉ ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे लिख दिया फिर से एक बार, क्या था ये, x⁻a इंटू b इज इक्वल टू x⁻ab। चलो ये वाला यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। चलो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक शायद आपको दिखाई देगा, कहाँ तक, यहाँ तक आपको दिखाई देगा। चलो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा, ये हो गया t⁻1, बराबर है, इज इक्वल टू, ये नॉर्मल आपका k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों। अब देखो आज सिर्फ और सिर्फ बी केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस कैसे है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूजेस हम लोग देख रहे हैं, ये यूजेस में आगे आगे देखो बहुत मजा आएगा हम लोगों को। क्या होगा, ये l⁻a जो था, ये l⁻a और ये वाला प्लस b, देखो लॉ ऑफ इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया आपका, दैट इज t⁻2b, बराबर है, ये हो गया t⁻2b हो गया आपका। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब सिंपल देखेंगे, यहां पे देखो इस साइड में l की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इन टर्म ऑफ दिस, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, जी जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि इधर नहीं है, l की कोई टर्म नहीं है, तो दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू -b, बराबर है, a इज इक्वल टू -b। सिमिलरली अब ये -2b है, यहां पे वैल्यू है क्या, है वैल्यू, कितनी है, t की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू -2b, 1 इज इक्वल टू -2b, और इट इज सिंपली रिटन एज द b इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू -1/2। अब ये b की वैल्यू तो हमें यहां मिल गई, b की वैल्यू यहां पे हमें मिल गई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, बताओ, a इज इक्वल टू माइनस ये वाला -1/2, इट इज नथिंग बट द सिंपल 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/2। अब ये जो वैल्यू है, ये a वाली वैल्यू, बराबर, ये b वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करते हैं हम लोग, इसके अंदर पुट करेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, तो वहीं पे लिख देता हूं। चलो अब क्या हो गया, ये t इज इक्वल टू, बराबर है, k l⁻a की वैल्यू क्या है, 1/2, बराबर, इंटू g⁻2 क्या है, -1/2, g⁻2 क्या है, -1/2, ये बराबर है, यहां तक तो बराबर है। अब क्या करेंगे इसको, सिंपल देखो, t इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू के एल रेस टू 1/2 जी रेस टू -1/2। मतलब क्या होगा, ये माइनस है मतलब कहाँ होगा, ये डिनोमिनेटर में होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/2 बराबर है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, इधर देखो, यहाँ से इधर का देखना है हमें, ये ऐसा इधर देखना है। देखो इसको कैसा लिखेंगे, t इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट l डिवाइडेड बाय g रेस टू 1/2। क्यों, क्योंकि इसका भी 1/2 है पावर, इसका भी 1/2 पावर है, तो इसका भी क्या होगा 1/2 पावर होगा। सो सिंपली t इज इक्वल टू के रूट ऑफ 1/2 क्या होता है, रूट ऑफ होता है, इट इज नथिंग बट दी l/g। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन है, जो कि हमें 12th के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया है और हमने आज ही इसको सॉल्व किया। हमने क्या किया, इसको आज ही सॉल्व कर दिया। अब ये हो गया t इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ l/g। ये क्या बताता है, ये बताता है हमें दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब चलो थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अब यहां तक आगे है 12 का भी देख लेते हैं। ये जो k है ना बच्चों, ये k की वैल्यू अगर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे रिलेटेड विद द सिंपल पेंडुलम, माना कि यल कुछ ले लिया, 10 सेंटीमीटर ले लो, 15 सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर ले लो, 8 सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, जी की वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी, वो वैल्यू रख दो। अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आप करोगे तो ये जो k है ना, ये k की वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई। ये नियर अबाउट आती है 6.28 के आसपास आती है। और दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दी t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l/g। देखो सिंपल, ये इक्वेशन है अपना सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड्स का। देखो बच्चों थोड़ा सा आज ज्यादा ध्यान दो। आज हम लोग इधर उधर कहीं बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। व्हाई, बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो रुक करते हैं अब तीसरा पॉइंट। ये बच्चों समझ में आ गया ना जी, कुछ भी नहीं है, बस रिलेशन कैसा इस्टेब्लिश किया है वो देखना है हमें। अब जो आखिरी वाला है ना, वो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, बहुत यानी क्या बहुत मजेदार है बच्चों। ये मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये लंबा वाला चलेगा थोड़ा सा, तो बोर्ड भी अपने को ज्यादा लगेगा। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये क्या बता रहा है, टू फाइंड द, तो क्या करते हैं, नंबर 3rd वाला हम लोग देखते हैं। ये 3rd वाला क्या बता रहा है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कन्वर्जन फैक्टर। ये क्या है, कन्वर्जन फैक्टर। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन units of the same physical quantity, units of the same physical quantity in two different system of unit। आप लोग बोल रहे होंगे सर आज ये आईपैड में से देख के इक्वेशंस लिख रहे हैं या पॉइंट्स लिख रहे हैं। हाँ बच्चों ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ पॉइंट जब मैं एक्सप्लेन करने जाता हूँ ना, तो मैं किताब के बाहर चला जाता हूँ, कुछ अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। तो सिर्फ मैंने क्या किया है, ये जो मेरा आईपैड है ना, ये आईपैड के मदद से सिर्फ और सिर्फ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। चलो अब देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट ऑफ सिस्टम। देखो बच्चों एक बात ध्यान में रख लो, जितना लंबा चौड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना लंबा चौड़ा पॉइंट होता है ना,
उसमें उतना दम नहीं होता है। चलो इसको एक सिंपल सेंटेंस में आपको बता देता हूं। क्या है कि दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन लेते हो आप। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन ये आप लेते हो, बराबर है। हाँ, तो ये कहां से आता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू बहुत इजी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, किताब में का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा है, किताब में दिया गया है जूल। 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग आएगा। ये दो अलग अलग क्वांटिटी है, सॉरी यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये जूल आ गया आपका एसआई यूनिट्स में आ गया, अर्ग जो आ गया आपका अदर देन एसआई यूनिट्स आ गया। ये सीजीएस भी बोल सकते हो उसको आप लोग, अलग आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात हमें ध्यान में रखना है, सिस्टम कोई भी हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, कोई भी सिस्टम हो, उसका डायमेंशन सेम रहता है, उसका डायमेंशन सेम रहता है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम जूल की डायमेंशन लिखते हैं। सर हमने जूल पढ़ा है क्या, हाँ बच्चों पढ़ा है हमने। कब, जब हम डायमेंशन सॉल्व कर रहे थे अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके, तब उसके अंदर हमने वर्क जो सॉल्व किया था, वर्क का यूनिट क्या था, जूल था। तो जूल क्या है, जूल का सिंपल सा डायमेंशन है। जूल का डायमेंशन आता है 1 इन मास, 2 इन लेंथ और -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। देखो ये जूल का आ गया। अब बताओ बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है ना, इसको मानो हम x पकड़ लेते हैं। इसको क्या पकड़ लेते हैं हम लोग, x पकड़ लेते हैं। अर्ग भी क्या है, ये भी यूनिट है, किसका, वर्क का यूनिट है। तो फिर ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन कैसी होगी बच्चों, अलग अलग होगी क्या, नहीं, एक ही होगी। क्यों, मैंने अभी बताया था कि सिस्टम कोई भी हो, डायमेंशन कैसी होती है, सेम होती है। चलो अब देखते हैं, इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, LHS और RHS को कुछ सफिक्स दे देते हैं अलग अलग, हमें समझने के लिए। इसको समझो M1, इसको L दे दिया, 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर लो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा हमारा 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। लेकिन ये किसके रिलेटेड हो गया, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटेड हो गया, ये वाले क्वांटिटी के रिलेटेड हो गया। फिजिकल क्वांटिटी बोलो या उसको, हाँ फिजिकल क्वांटिटी बोलेगे तो चलेगा, उसको कोई दूसरा वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते उसको हम लोग। चलो अब ये वाला लिख लो, सॉरी ये हो गया सेकंड वन वाला। ठीक है, अब एक चेंजेस है हमारे पास यहाँ पे, एक सबसे बढ़िया चेंज है हमारे पास एक यहाँ पे। कौन सा वाला बढ़िया चेंज है हमारे पास, कि ये जो है ये एसआई सिस्टम में है, और ये जो है हमारे, ये है किसमें है, ये है हमारे सीजीएस में आते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अब इसका और इसका कन्वर्जन, ये और ये कन्वर्जन कर लेंगे। ये मास होगा किलोग्राम में, ये मास होगा ग्राम में, ये लेंथ होगी मीटर में, ये वाली लेंथ होगी सेंटीमीटर में, टाइम तो सेम होगा। तो चलो बच्चों मैं ये फैक्टर को इस तरह लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ, इस तरह लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ। यहां पे लिखता हूं मैं, दैट इज नथिंग बट दी M11 M21 similarly L12 L22 और this one T-2 for first one, T-2 for second one। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या होता है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये पहले समझ लो फिर एक बार, ये जो वन दिया है हमने, जो हमने सफिक्स यूज किए हैं, ये सफिक्स जो वन वाला आता है वो आता है एसआई यूनिट के रिलेटेड, ये एसआई यूनिट के, और जो सफिक्स 2 यूज किया है ना वो आता है सीजीएस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड आता है वो आता है सीजीएस के रिलेटेड। चलो फिर अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको और मॉडिफाइड कर लेते हैं। ये हो गया, ये M1 जो है वो किस में है, केजी में है। ये वाला M2 किस में है, ग्राम में है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐसा लिख लेते हैं। चलो अब इसको लेंथ L1 1 है, 1 वाला फर्स्ट वाला किस में है, एसआई यूनिट में। तो बच्चों इसको कैसा लिखेंगे हम लोग, मीटर में लिखेंगे। इसको कैसा लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी किस में, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में है, L2 आता है हमारा सीजीएस के अंदर। और ये तो बेचारा है, ये तो किसी के इधर भी नहीं होता है उधर भी नहीं होता है, ये होता है हमारा सेकंड। दोनों ही या तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स पकड़ लो या फादर ऑफ एसआई सिस्टम पकड़ लो, सबके अंदर कैसा है, ये सेम आता है, कहीं चेंज नहीं होता है। चलो अब किलोग्राम हमें पता है, 1000 ग्राम होता है तो उसको 1 किलोग्राम बताया जाता है। तो इसको मैं बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या, x इज इक्वल टू 10⁻³ g डिवाइडेड बाई g। अब कई बुक्स में आपको gm भी लिखा हुआ मिलेगा, gm ग्राम इजी जाता है ना लोगों को लिखने को, ऐसा इसको यहाँ पे, मगर कुछ बुक्स में सिर्फ g भी दिया गया है। अब मीटर है तो कितना सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। ये कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 10⁻² लिख दो। चलो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, 10⁻², ये सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, ये इसका पावर हो गया, और ये सेकंड है, दोनों ही क्या है, सेकंड है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1⁻² होगा, बराबर है। अब देखो बच्चों हो गया, खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेना है, 5 मिनट सिर्फ। ये जी रे जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये सीएम माने चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये हमारा सेंटीमीटर वाला सीएम है, तो चीफ मिनिस्टर बोल दोगे। ये सीएम कट हो गया, ये सीएम कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इसका पावर 1 है, ये हो गया 10⁻³ उसका पावर 1, ये हो गया 10⁻² उसका पावर 2, ये हो गया 1⁻²। अब बच्चों मुझे बताओ x इज इक्वल टू 10⁻³ है, बराबर है, 3 1 3 प्लस 2 2 4, ये क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं आएगा, क्या हो गया, 1 प्लस माइनस होगा, वो माइनस है ना, तो वो कुछ भी नहीं, वो कैंसल्स हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा वो, तो इसको मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, और आपकी x की वैल्यू आ गई 10⁻7। तो बताओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा, 10⁻7 आ जाएगा, तो क्या होगा, ये 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब मुझे बताओ, ये जो रिलेशन है एसआई सिस्टम का और सीजीएस सिस्टम का, ये रिलेशन हमने कैसे सॉल्व किया, विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। देखो बच्चों, 3 यूजेस है, सिंपल 3 यूजेस है इसके। पहला वाला यूज क्या देखा हमने, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, इसके अंदर हमने क्या लिया था, एक इक्वेशन लिया था, काइनेमेटिक इक्वेशन बोलो या उसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, v इज इक्वल टू u प्लस AT, उसके हेल्प से हमने ये सॉल्व किया था। दूसरा क्या देखा था, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये जो हमारा आखिरी वन था, ये था 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का रिलेशन, जो कि उनकी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आई थिंक वी आर एंजॉइंग दीज लेक्चर्स, और ये आपको बहुत इजी तरह से समझ में आया होगा। सो गाइज देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके लिमिटेशन है और 3 डेफिनेशंस है अलग अलग। एक्यूरेसी है उसके अंदर, प्रिसाइज भी है और अनसर्टनिटी है।
और इसके बाद हमारा नियर अबाउट 75% चैप्टर खत्म हो जाता है. सो गाइज, थैंक यू सो मच for watching my video. Thank you so much and have a nice day.